Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Government College, Kota. Today we will start the lecture on the Bryophytes and Ungenera Marchantia. जैसा कि हमें पता है मार्केंशिया का हमने पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। कैसे पहला पार्ट था ये भी हम थोड़ा बताएंगे आपको। ये इस तरह का सिलेबस है कि हम बार बार हर क्लास में बताते हैं, क्योंकि कई बच्चे हो सकता है पहली बार आए हैं या बीच में नहीं आए हैं, तो कोई पता रहे कि हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं। सेकंड में इस जगह जो मार्केंशिया है इसको हम पढ़ चुक रहे हैं, बाकी ये आगे का पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। ये इस तरह से ब्रायोफाइट्स हैं, जैसा कि शुरू की क्लास में भी हमने बताया था कि ऐसे ये ब्रायोफाइट्स की इमेजेस हैं जो कि नमी वाले क्लाइमेट में बारिश के टाइम में ये ग्रो कर रहे हैं। इस तरह से चट्टानों में हैं और ये सरफेस पर चिपके हुए ग्रो करते हैं। छोटे छोटे राइजोइड्स की सहायता से फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये इस तरह से मार्केंशिया की संरचना है, जिसमें ये गेमा कप से इजीली रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं कि ये मार्केंशिया जेनेराई है। बाकी तो स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं। इस तरह से ये आर्चिगोनिया 4 और एंथीडिया 4 होते हैं, जिसमें आर्चिगोनिया और एंथीडिया लगते हैं और जिनसे आगे चलकर एंथीरोजोइड और एग सेल बनते हैं, जो कि मेल गैमेट के कार्य करते हैं, बनाते हैं आगे चलकर। और यह संरचनाएं होती है, कैसे होती है ये हम आज इस टॉपिक में पढ़ें। अगर हम मार्केंशिया का वर्गीकरण देखें तो इस तरह से होता है कि ब्रायोफाइट डिवीज़न है, क्लासेज रहा मामला एपिटिकोप्सिडा है, ऑर्डर मार्केंशियलीज है। लगभग इसकी 65 प्रजातियाँ स्पेसीज पाई जाएगी, जिनमें से 11 करीब इंडिया में है। ये 11 जो है हिमालय रीजन में या पहाड़ी क्षेत्रों में ही ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ की नमी भी हो और बारिश भी होती रहती है। ये स्पेसीज कूल, मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस में ग्रो करती है, जैसा कि है। The development of Anthidium is similar to that in the Rixia. A mature Anthidium consists of a stalk and a globular body. The jacket of body is formed by a single layer of thin walled cells, and it encloses a large number of enterocytes. When water enters into the slightly concave disc of the Anthidiophore, it moves through the narrow canal into the Anthidial cavity. The enterocytes comes out of the dehisced Anthidium and forms biflagellated antherozoids. The position of Archegoniophores on the thallus is similar to that of the Anthidiophores. An Archegoniophores also consists of a stalk and lobed disc. The stalk has two longitudinal furrows running the length as seen in the transverse section. The internal structure of the disc is similar to that of thallus. Like Anthidia, the Archegonia are produced in acropetal succession from the cells cut off by apical cells on the dorsal face of each lobe. The stalk of Archegonia 4 is very short and Archegonial neck are directed upwards, and fertilization occurs at this stage. After fertilization, the stalk of Archegonia 4 elongates and center part of the disc shows considerable growth, due to which marginal apical region of disc along with the groups of Archegonia is pushed over the lower surface of the disc. Finally, the growing apices become incurved and lies close to the stalk of Archegonia 4. Now the Archegonian necks are directed downwards, and the youngest Archegonium is near the stalk and the oldest towards the periphery of the disc. Subsequently, each pup containing 12 to 15 Archegonia is enclosed by a two-lipped pendant involucral sheath. At maturity, the Archegonia 4 consists of a long stalk and terminal 9 red disc.
Archegonia are arranged on the lower surface of each lobe in radial rows and are located between the rays. Each group of Archegonia is protected by pericytium. The development of Archegonia is similar to that in Rexia. A nearly mature Archegonium is a flask-shaped structure with stalk, swollen venter, and a long neck side. The single-laid venter is a large egg and venter canal cell. The neck is composed of 6 vertical rows of jackets. मेन कैरेक्टर भी है इसका जनरल लेवल पर आइडेंटिफिकेशन का कि यहाँ पर नेक जो है जैकेट सेल्स की 6 वर्टिकल रोज की बनी होती है। इसको अभी हम डायग्राम में भी लेंगे तो और ज़्यादा आपके क्लियर होगा। और जो दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे हमें इसका लिख रहे हैं कि सराउंडिंग फ्रॉम द 4 और मोर नेक कैनाल सेल, वो भी आगे डायग्राम में आपके आएगा तो हम उसको बताएंगे। Archegonia enters the neck. One of the entheozoid fertilizes the egg and a reproduce the zygote is formed. Simultaneously, the stalk of Archegonia elongates and the wall of the just as the rexia divides transversely into the upper epibasal and lower epibasal cells. The second wall is generally formed by triangle. 2 and 4 equal cells are formed. The epithecium forms the jacket of the capsule. The endothecium gives rise to the archisporium, which by repeated division develops into a massive sporogenous tissue. A mature sporangium of Marchantia is differentiated into the foot, seta, and capsule. The foot is bulbous and spreading structure directed towards the base of the archegonium. It absorbs water and nutrients from the surrounding tissue of the gametophyte for the developing sporophytes. The set is short and thick and is connect the foot and capsule. The elaters are hygroscopic. Hygroscopic मतलब होता है बच्चों आर्द्रताग्राही। जो इलेटर्स होते हैं वह वातावरण की नमी को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। और they coil and uncoil with changes in the humidity of atmosphere. By these movements, elaters help in separation and dispersal of spore. After maturation of spore, the seta elongates considerably. Consequently, capsule break through the protective coating. It hangs down the underside of the disc of the archegonium. After exposure to the outer atmosphere, the wall of capsule is split longitudinally from the apex to the middle into the number of lobes. These lobes are reflect the exposed spores and elaters to the outer atmosphere. Spores are finally dispersed by the wind. A spore germination under favorable conditions, the exposure ruptures, exospores ruptures and endospores comes out in the form of germ tube which divide by transfer division forming a शॉर्ट फिलामेंट। इस तरह से ये पहले हमने देखा भी था रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव में कि किस किस मेथड से होता है। फ्रेगमेंटेशन बहुत सिंपल था, एडवेंटिटीज ब्रांच से, गेमा कप से। और ये वाला जो हमने देखा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जो कि अब डायग्राम फॉर्म में अगर हम समझें तो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जो अभी हमने अर्लियर बताए कि ये थैलस से इस पर ये एंथीडियोफोर लगा और ये फाइनली ये एंथीडिया इस पर लगेंगे, ये आर्चिगोनिया फोर लगे और इस पर आर्चिगोनिया लगेंगे। कैसे लगेंगे, ये इस तरह की संरचनाएं यहाँ पर रहेगी, लार्ज स्ट्रक्चर है, इस तरह की पोर्शन में लगे। अभी और स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि इस तरह से ये आर्चिगोनियम विधेयक से ये वाली संरचना है, ये आया आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर है विद एग। ये वाला जो संरचना है ये एंथीडियम विद स्पर्म है, इसमें एंथीडियम है, इसमें आगे चलकर स्पर्म बनेंगे। दूसरा एक डायग्राम और है ये वाला, इससे देख सकते हैं आप, ये इस तरह से इसके अंदर एंडोसाइट बनेगा और यहाँ एंथेरोजोइड बनेंगे इनमें। ये वाला स्ट्रक्चर है।
स्ट्रक्चर अरेंज है बच्चों, तो इस तरह से ये है, ये डिवीज़न हुए और इसमें हर एक सेल से ऐसे एंथेरोजोइड बने। ये वाली जो संरचना है ये वाली है जो कि मेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये वाली फीमेल वाली। शेप में भी अंतर है, जैसे ये उल्टा छाता वाला शेप है और ये अम्ब्रेला शेप है, देख सकते हैं। इस तरह से इसमें आर्चिगोनियम जो स्ट्रक्चर है, या एक सेल नेक कैनाल सेल, ये इस तरह की संरचना जो ये मैंने बताई थी, ये एक सेल है, ये कैनाल सेल वेंटर कैनाल सेल है, ये नेक सेल है, और ये यहाँ की सेल्स जो है कवर सेल कहलाती है। ये बात कर रहे थे, ये वाली कवर सेल्स कहलाती है। जहाँ तक रहा मामला डेवलपमेंट का, तो इस तरह से ये डेवलपमेंट एंथेरोजोइड का होगा। ये जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, दैट इज़ एंथेरोजोइड। ये हेप्लॉइड संरचना है, क्योंकि ये ध्यान रखें ये रिडक्शन डिवीजन तो नहीं कर सकते, प्लांट बॉडी हेप्लॉइड है, तो वो उससे बनी है, प्लांट बॉडी हेप्लॉइड से, कहीं भी इसमें फ्यूज़न नहीं हुआ इसके पहले, इसलिए ये हेप्लॉइड संरचना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ये इस तरह से एंथीडियल सेल जो मदर सेल है, ये दो में डिवाइड हुई, क्योंकि डिवीज़न परिधि के साथ साथ इसलिए इसको पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो ये इस तरह से पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। ऊपर वाली जो बाहर की सेल वो एंथीडियल सेल का कार्य करेगी, ये स्टॉक का कार्य, और ये सेल बेसल सेल का कार्य करेगी। फिर आगे डिवीज़न हुआ, तो ये जो नीचे की बेसल सेल है यहाँ आपको दिख रही है, फिर ये डिवीज़न हुए, ऐसे ये सेल्स बने, और ये अपर सेल अपर मोस्ट पर है, ये प्राइमरी एंथीडियल सेल्स। फिर ये इस तरह से फिर एक ये डिवीज़न हुआ जो कि परिधि के साथ साथ हो, दैट इज़ कॉल्ड पेरिक्लाइनल, तो इससे डबल लेयर बन गए। तो बाहर की जो सेल्स है दैट इज़ द मतलब वो आगे बनाएगी प्राइमरी जैकेट सेल्स, और इससे बनी प्राइमरी एंड्रोसाइट सेल, जो ये अंदर सेल्स हैं प्राइमरी एंड्रोसाइट सेल्स, ये वाली, ये इस तरह की ऐसी संरचनाएं रहेगी। इन सेल्स से आगे एक वर्टिकल डिवीजन होगा और उससे एंड्रोसाइट सेल्स बनी, एंड्रोसाइट सेल, जो फिर आगे चलकर इस तरह से एंथेरोजोइड बनाएंगे। इसी क्रम में जो है हम जो देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम है, ये इस तरह से इसको स्केच फॉर्म में भी देखा जा सकता है, जिसमें आपको और ज़्यादा समझ में आए। कुछ बुक्स में दे रखा है, ये जो बुक्स हैं, ये डायग्राम हमने जो लिया है ये अलका पब्लिकेशन की बुक से है, इसमें दे रखा है। कई इंग्लिश बुक्स में भी ये है। इसके स्कीमेटिक फॉर्म में आप समझ सकते हैं। एंथीडियल इनिशियल, जिसमें ट्रांसलेशन हुआ, प्राइमरी स्टॉक सेल्स बनी, इससे प्राइमरी एंथीडियल हुए, फिर इसमें एक दो अनुप्रस्थ विभाजन हुए, फिर इससे दो चार ये कोशिका तंतु बने, फिर दो वर्टिकल डिवीजन हुए एक दूसरे समकोण पर, फिर इस तरह पेरिक्लाइनल डिवीजन से आगे चलकर, पेरी मतलब परिधि के साथ साथ, ये डिवीजन से बाहर की तरफ ये बनेगा और अंदर की तरफ ये, और इससे आगे चलकर फाइनली एंथीरोजोइड बने, और इससे जो बना ये जैकेट बनी। इस तरह की ये इसमें संरचना आप देख सकते हैं एंथेरोजोइड के डेवलपमेंट में। मतलब यहाँ से आप समझाएंगे ये टीएस बना, ये दो संरचना बनी, फिर इससे डिवीज़न से आगे स्टॉक बना, इसमें बना ये वाला डिवीज़न हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये क्लिप हुआ, देन फिर ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ, फिर ये सेल्स बने, इन सेल्स से आगे चलकर ये एंड प्रोडक्ट बनाया और इनसे आगे चलकर ये संरचनाएं बनी। इससे स्केच तरह के फॉर्म के डायग्राम में और ज़्यादा आपके आसानी रहेगी समझने में। दूसरा ये हम डायग्राम ले रहे हैं मार्केंशिया में स्थिर थानी के परिवर्तन की विभिन्न चरण, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ची। इसमें ध्यान रखें कि फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनना है। फाइनल स्ट्रक्चर ये बनना है, यहाँ पर एक सेल है, ये वेंटर सेल है, और ये नेक कैनाल सेल्स है, और ये वाली कवर सेल्स है। इस तरह से आर्चिगोनल एंड इनिशियल, ये डिवीज़न हुआ, आउटर सेल, इनर सेल, ये डिवीज़न, ये इस तरह से डिवीज़न,
फिर ये डिवीजन, ये वाला डिवीजन जो है वेरिएशन दिखाएगा, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन रहा। तो इससे बाहर की लेयर, अंदर की लेयर बनी, अंदर वाली प्राइमरी एक्सियल सेल्स बनी और बाहर से जैकेट सेल जो ये दिख रही है ये वाली दिखाई दी। इस तरह से संरचना ये कई बार कंफ्यूज भी करती है। और इन सेल्स में डिवीजन जो हुए इससे अंदर की जो सेल्स रही ये इस तरह का रहा, जिसने एग का निर्माण करा फाइनली। इसमें वेंटर कैनाल सेल्स बनी और ये नेक सेल्स कल। इस तरह से ये जो लंबी स्ट्रक्चर रहा ये पूरा नेक और ये कवर सेल्स इसकी कही जाएंगी। इस तरह से डेवलप, इसको और ज़्यादा स्केच फॉर्म में यहाँ भी हमने कलेक्ट करके करी कोशिश। ये आर्चिगोनियल इनिशियल है, इसमें टीएस हुआ, लोअर सेल बनी, ये अपर सेल में 3 वर्टिकल डिवीजन हुआ, इससे ये बना, फिर इसके अंदर विभाजित होकर ये बेसल पॉड बना। इसके अंदर सेंट्रल पोर्शन से टीएस हुआ, फिर प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल बनी, फिर प्राइमरी कवर सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन हुआ, कवर सेल बनी, फिर इस वाले में टीएस हुआ और वेंट्रल सेल बनी, प्राइमरी नेक कैनाल सेल। इन नेक कैनाल सेल्स में वर्टिकल डिवीजन ट्रांसफर डिवीजन होने से नेक कैनाल सेल्स बनी और इस वेंट्रल सेल में टीएस होके वेंट्रल कैनाल और नीचे वाली सेल, साइड का ध्यान रखें बच्चों, नीचे वाली सेल जो है वो एग सेल का निर्माण करती है। और इधर जो है ये 3 पेरिफेरल सेल्स, वर्टिकल डिवीजन, प्राइमरी जैकेट सेल, ट्रांसफर डिवीजन और इस तरह से 2 टायर की 6 सेल्स बनी, वेंटर इनिशियल, इससे नेक इनिशियल। ये इस तरह का डेवलपमेंट है जो कि स्केच फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। ये इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट बना, ध्यान रखें, ये इस तरह से ये बना। ये मेन चीज़ एग सेल है, बाकी ये असिस्ट कर रही है, ये सामने ध्यान रखें। फिर आगे जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बना, जैसे हमने समझाया है, उसमें फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन होगा, इपी बेसल सेल, देन हाइपोबेसल। इपी मीन्स ऊपर, जैसा कि पहले ही क्लास में बताया था, इपी मीन्स अपर होता है, वह सेल है, और ये हाइपोबेसल सेल। सेकेंड वर्टिकल डिवीजन, फिर इस तरह से क्वाड्रेट बना, वर्टिकल डिवीजन राइट एंगल टू द फर्स्ट, देन ऑक्टेंट बना, क्वाड्रेट से 4 में डिवीजन होने से 8 गए, लोअर हाइपोबेसल से फुट और सीटा बनेगा, और इपी वाले अपर पोर्शन से कैप्सूल और सीटा का कुछ पोर्शन ये बनेगा। इस तरह से ये संरचनाएं रही। ये डिवीजन ये वाला हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये इस तरह से कलिप्ट्रा, देन ये रीजन, देन ये, और फाइनली इस तरह की ये संरचना इस प्रोफाइट डेवलपमेंट के जरिए ये बनी। इस तरह से ये मार्केंशिया का कंप्लीट विकास, और इसको समरी फॉर्म में आप लाइफ साइकिल को भी में भी समझ सकते हैं। कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो वहाँ भी आपकी साइकिल रिवीजन में भी ये काम आएगी। इस तरह से ये थैलस है, इसमें ये आर्चिगोनियोफोर, एंथीरियोफोर है, ये लगेंगे। फाइनली इसमें एग सेल बनेगी इस तरह से, और ये इस तरह से ये बना, देन फ्यूजन हुआ, पूरी जाइगोट संरचनाएं बनी। इसी क्रम में एक और डायग्राम है, इसमें भी आप समझ सकते हैं। कैसे ये आर्चिगोनियोफोर, एंथीरियोफोर है, एग लगेंगे और एक सेल बनेगी और एंड्रोसाइट बनेंगे और फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा। ये हम देखिए टेक्निकल टर्म्स है जो कि हमने इसमें यूज ली है। कई बार ये इंटरव्यूज़ में या आपके वाइवा में पूछ लिया जाता है कि आर्चिस्पोरियम क्या है, गेमेटोफाइट क्या है, पेरिथीसियम क्या है, तो ये भी आप ध्यान रखें। ये जो टॉपिक है इन बुक्स पर आधारित जो कि आप हायर क्लासेज में और डिटेल में पढ़ने के लिए पढ़ेंगे और कंपटीशन में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।